Hello, good morning, children. Just we are on the topic of preparing the trial balance. This one is the method. Yesterday it was explained before you how to trial balance is prepared, why this one is prepared. It is prepared to check the arithmetical accuracy from the debit and credit balances of the ledger account. In question number 2, in your book, question number 2, this one is the practical question given. Just read the question carefully and you can find how the trial balance is prepared. Just we have to redraft the trial balance. Because of that, the accountant in this question is inexperienced. So he made a little bit of mistake. We have to redraft. Just we have to take the books, whatever the information given. Firstly, we have to prepare the trial balance pro forma. Just you can write this way. You can draw the pro forma of the trial balance. This one is the method, amount debit, amount credit, and ledger folio. Just this one is the trial balance of, in question second, from the following balances taken from the books of Messrs. Dwarika Prasad and Sons as at 31st March 2017. Prepare a trial balance, whatever in proper form. We have to prepare this one in proper form. So, trial balance of Mr. Dwarika Prasad. सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स द्वारका प्रसाद as at 31st March 2017. In column name of the account, just we can write name of the accounts. Ledger folio number, amount debit, amount credit, amount debit and amount credit. So my dear children, what are the information given? With reason, I would like to tell you. Messrs. Dwarika Prasad, just given cash in hand, just written at the debit column, because this one is the assets, you know it very well, all the assets debit. Cash balance always shows the debit balance. So you can write the first name of the account, cash in hand. This will be the amount 4,500. Just in debit column. Lift the bread. Clear? कैश इन हैंड, कैश हमेशा डेबिट होता है बेटा, एसेट्स हमेशा डेबिट कॉलम में लिखी जाती है, एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट कॉलम में लिखा जाता है और इनकम और लायबिलिटीज को क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स just the कर्ज, debt of the
firm, so it will be posted in the debit column. You can write bank overdraft. Bank overdraft. In credit column, the amount given 8,000. 8,000 है बेटा, इसे क्रेडिट में डाल दिया क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट कॉलम में रखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक है हमारे वहाँ जो माल है उसे हम बेचने के लिए पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल की ओपनिंग स्टॉक हो जाती है, तो ये हमारी एसेट्स हुई क्योंकि इसे फ्यूचर में हम बेच करके इससे लाभ कमाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इन डेबिट कॉलम, इन डेबिट कॉलम ओपनिंग स्टॉक 20,000। Next information given, purchase. Purchase always debit. What comes in debit? तो इसे डेबिट कॉलम, परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो आप परचेज को लिख दिए परचेज इन डेबिट कॉलम। What's the amount? 80,000। 80,000 परचेज हो गया आपका। अब आइए परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स गिवन, सो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, सो परचेज रिटर्न यू कैन राइट ओवर हियर परचेज रिटर्न्स इन क्रेडिट कॉलम 2,000। Sales always shows the credit balance. Sales always credit. Sales in credit column 1,30,000. 1,30,000. Sales returns always because sold goods just are returned by the customer, so it will be debit. Sales return. Sales return. Sales return 5,000. Just you can write 5,000. In debit column, traveling expenses. These are expenses always debit. Expenses always debit. So you can write traveling expenses. In debit column 1,800, 1,800. Discount allowed, छूट दिया, this one is the expense for the firm, so it will be debited in trial balance. Discount allowed. Discount allowed. Allowed 600. Discount received. Discount received, my dear. Just you can put this one credit column because this one is the income for the firm. Income for the firm. So in credit column 1,500. 1,500. And machinery, this one is the asset, so in debit column machinery, in debit column 24,000. Land and building, this one is the assets of the firm, so we have to put in debit column. Land and building. Land and building. In debit column 50,000.
given debtors, just debtors means the amounts due to whom the goods are sold. So debtors will be the assets, we can receive the amount from them. Debtors given 18,400. 18,400. And next one, the creditors in same way. Creditors because whose amount are dues. Just we have purchased the goods from the particular suppliers and the amount has not been paid yet. They are called creditors. Creditors. 8,500 in credit column. Name given, creditors in credit column. Because of that we have to pay in future. This one is the liability for the firm and we have to discharge in future. Next, bills receivable and bills payable. Bills payable in credit and bills receivable in debit. Bills receivable and bills payable. Bills receivable in debit column and bills payable in credit column, because this one is the liability. Bills receivable in debit 2,850 and this one given just the bills payable 1,650. 1,650. Capital, my dear, this one is the liability of the firm. So in credit column and trial balance, this one is posted in credit column 60,000. 60,000 in credit column. Next one, drawings. This one, the amount withdrawn by the proprietor for his personal use. So this can be put on credit side and debit side. Drawing, this one is the expense for the firm. So put on debit side 6,000. And next one, rent. This one is the expense of the firm. So rent can be put in debit column. Also 3,700. 3,700, my dear. Then salaries. This one is salaries paid to the workers. So it put, this one is the expense. So in debit column, salary in debit column 3,600. 3,600. And loan credit. Loan credit. Always this one is the liabilities. So in credit column 10,000. 10,000. And last information given, interest on loan. Just we have to pay the interest on loan 1,200. This one is the expense for the organization. So interest on loan. Interest on loan posted in debit column 1,200. Now just you can total this one. Just you will find the debit column is equal to the credit column. Our credit column is the equal to the debit column. 2,21,650. 2,21,650. 2,21,650. This way
The trial balance is prepared, my dear. Now listen in Hindi. मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैसे पोस्टिंग की जाती है। हम रीजन के साथ बता रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का आपने डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम ड्रॉ कर लिया, लेजर फोलियो नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट। पहला इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो कैश इन हैंड है। कैश हमारी करेंट एसेट्स होती है, इसलिए हमने इसे डेबिट कॉलम में पोस्ट कर दिया। दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक जो ये होता है, बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, वह जो है हमारा आपका आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट ये हमारी लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, हमने क्रेडिट कॉलम में डाल दिया। फिर ओपनिंग स्टॉक, ये गुड्स जो पिछले साल का सामान रह गया है बेचने के लिए, इस साल हमारा क्या है, वो एसेट्स है, हम उसे बेच करके लाभ कमाएंगे। तो एसेट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में एसेट्स को लिख दिया हमने। ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑलवेज डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, यू नो, परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो हमने परचेज को 80,000 को डेबिट कॉलम में। परचेज रिटर्न मतलब जो हमने सामान खरीदा है उसे हमने वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कॉलम में 2000 रुपये लिख दिया। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि हम सामान बेचते हैं, व्हाट गोज आउट, तो सेल्स को हमने क्रेडिट 1,30,000 का हमने लिख दिया। सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल वापस आ गया यदि, तो क्या होता है, वो फिर हमारे पास आ गया, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो वो सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट 5,000 से किया, डेबिट कॉलम में लिखा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इट हैज बीन टोल्ड यू हमेशा डेबिट होता है, तो हमने खर्च को एक्सपेंसेस दिया है, डेबिट कॉलम में लिखा। डिस्काउंट अलाउड, छूट दिया, whether the discount allowed to the firm, just this one is the expense for the firm, ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो डेबिट कॉलम में 600 रुपये हमने लिख दिया। डिस्काउंट रिसीट, जैसे हम छूट देते हैं वैसे छूट पाते हैं। छूट जब देते हैं तो एक्सपेंस बनता है, और छूट जब पाते हैं तो वो इनकम बन जाता है, और उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया 1,500। मशीनरी, दिस वन इज द एसेट्स, एसेट्स है हमारा, तो एसेट्स को हमेशा डेबिट होता है, डेबिट कॉलम में डाला गया। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी संपत्ति है, फर्म की संपत्ति है, ये भी डेबिट होगी 50,000 रुपए से। डेटर्स, जिनको हमने सामान उधार बेचा हुआ है उनसे पैसा मिलना, ये भी हमारी संपत्ति है, तो डेटर्स को हमने और डेबिट किया। क्रेडिटर्स मतलब जो लेनदार हैं जिनसे हमने उधार सामान खरीदा हुआ है, उनको हमको क्या करना है, पैसा चुकाना होता है, तो वो भी हमारे क्या हुए, क्रेडिटर हुए, लायबिलिटी हुई फर्म के लिए, और हमें उसे क्रेडिट कॉलम में लिखा हमने। बिल्स रिसीवेबल, जो ये है हमारी फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होगी, करंट एसेट्स के रूप में आती है, तो इसको हमने डेबिट में बिल्स रिसीवेबल को 2,850 रुपये लिखा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारा क्या होता है, हमें इसे विद इन 1 ईयर पेमेंट करना होता है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटीज होती है, फर्म डिस्चार्ज करती है, तो इसे हमने क्रेडिट कॉलम में पोस्ट किया। कैपिटल ऑलवेज द ओनर सिक्योरिटी, मालिक की, ये भी फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, तो
क्रेडिट कॉलम में हमने 60,000 कैपिटल के रूप में लिखा। ड्राइंग, जब मालिक अपने पर्सनल खर्च के लिए पैसा निकालता है व्यवसाय से तो उसे ड्राइंग कहते हैं, ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, इसलिए डेबिट कॉलम में लिखा गया। उसके बाद रेंट पे किया, जो भी हमने किराए पर लिया है तो एक्सपेंस है, डेबिट कॉलम में डाला। फिर उसके बाद सैलरी दिया हुआ है आपका, सैलरी ये भी वेतन हमने दिया, एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो हमने इसे डेबिट कॉलम में पोस्ट किया। उसके बाद लोन है, लोन हमने लिया हुआ है, कर्ज फर्म ने लिया है तो लायबिलिटी है, सीधी सी बात, आपने क्रेडिट कॉलम में रखा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपने कर्ज लिया है उसके ऊपर ब्याज दिया तो वो आपका एक्सपेंस हुआ, उसे डेबिट कॉलम। अब डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम को जोड़ने के बाद दोनों साइड यदि इक्वल आ जाता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ध्यान रखिएगा, जो भी खर्च होता है और जो भी संपत्ति होती है उसे हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखते हैं। जो हमारे इनकम होते हैं, आय होता है, और जो हमारे दायित्व होते हैं, कर्ज लायबिलिटीज होती है, उसे क्रेडिट कॉलम में हम डालते हैं और दोनों का टोटल करते हैं। तो दोनों का टोटल करने के बाद यदि हमारा दोनों का टोटल इक्वल हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो सही है, एक्यूरेट है पूरा। जो हमने गणितीय अशुद्धियाँ नहीं हैं हमारे पोस्टिंग में, हमने जो खतौनी की है, जो भी ट्रांजैक्शन किया है, उनका सही क्लासिफिकेशन करके, उनका मूल्यांकन करके हमने सही रूप में अपने अकाउंट्स की बुक में लिखा हुआ है। और अकाउंट्स की बुक में लिखने के पश्चात हमने ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर किया तो हमारा डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम दोनों कॉलम जो है बराबर है, इसलिए अशुद्धियों का गुंजाइश नहीं। तो फिर एक बार पुनः ध्यान दें, जो भी खर्चे होते हैं, जो भी खर्च व्यय एक्सपेंसेस, वो डेबिट कॉलम में ट्रायल बैलेंस के लिखे जाते हैं। जो भी इनकम